whatever the things we can do, and for what we are ready to pay. And of course, whenever we say that we say that commodity, I think causes utility for you. Commodity has a satisfaction for you. Whenever we talk about good and service, sometimes using the masses, we may use the word commodity. We can use the word commodity. And you know, the commodity may be the good or it may be bad. It may be good or bad. Good means the commodity that causes satisfaction for you. That does not cause satisfaction for you is the bad for you. That commodity is bad for you. That doesn't mean that is bad for everybody. That may be the good for somebody else. For example, if I talk about the cigarette, maybe you like that because that does not cause satisfaction for you. But what about the chain smoker? Oh my God, that causes too much satisfaction for them. So basically, commodity कुछ भी हो, it's the usefulness, it does not concern whenever we talk about the satisfaction. Utility, it is not concerned with the usefulness or the harmfulness. आपके लिए उसके अंदर satisfaction है. आपको लगता है कि आप ये चीज खाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा. आपको लगता है तो आप बीमार हो जाएंगे. So therefore, the good is good for you, or the good is bad for you. The commodity is good for you. For an example, the book of microeconomics, and of course, if I give you the book of microbiology and microeconomics, would you prefer? No, of course not. Because that book of microbiology is not the good commodity for you. The book of microeconomics is commodity for you. And microeconomics, microbiology is the best for you. But that doesn't mean, what about the students of medical? The vice versa. Books of microeconomics is bad for them. And books of microbiology is good for them. So therefore, आप सिगरेट नहीं पीते हैं तो क्या हुआ? आप रसवार नहीं लगाते हैं तो क्या हुआ? आप चाय नहीं पीते हैं तो चाय में किसी चीज में सेटिस्फैक्शन है, रसवार में किसी चीज में सेटिस्फैक्शन है. ठीक है ना? आप सवाल कमीज पहनते नहीं तो क्या हुआ? आप जीन्स और टी शर्ट में सवाल कमीज में किसी के लिए सेटिस्फैक्शन है. आप कोट नहीं पहनते तो क्या हुआ? कोट में किसी के लिए सेटिस्फैक्शन है. So therefore, the good is good and bad, but that depends upon individual how they perceive, how they realize that causes satisfaction for them. Well, generally we use another word, that is word the ceteris paribus. Ceteris paribus is a Latin word. That means other things being equal, other things remain constant, other things held constant. No change in the others. Ceteris paribus. ये एक assumption है. Economics में हम use करते हैं just the impact and the contributions of the number of variables in the economy. For an example, मैं कहता हूँ देखिएगा, demand is the function of price, function of your income, function of taste, function of population, बहुत सारी चीजों का function है. These are basically price एक variable है, income एक variable है, taste एक variable है, population एक variable है. ये जो डिमांड है, किसी भी चीज की डिमांड में जो तब्दीली हुई है मार्केट में, I mean all the variables are responsible. कुछ तब्दीली प्राइस की वजह से हुआ होगा, कुछ तब्दीली की वजह से हुई होगी, कुछ तब्दीली टेस्ट की वजह से हुआ होगा, कुछ पॉपुलेशन की हो सकता है. पॉपुलेशन बढ़ गया तो डिमांड बढ़ गया, पॉपुलेशन कम हो गया तो डिमांड कम हो गया. मुमकिन है कि पॉपुलेशन की वजह से नहीं हुआ, पॉपुलेशन रिमेन फिक्स. सो देयरफॉर टेस्ट पॉजिटिव ज्यादा खाने लगे, टेस्ट नेगेटिव हो गया कम खाने लगे. मुमकिन है कि टेस्ट में कोई तब्दीली नहीं हुई हो, इसकी वजह से हो सकता है कि इनकम बढ़ गई है, ज्यादा खाने से कम हो गए, कम खाने लगे. मे बी प्राइस बढ़ गया है तो कम खा रहे हैं, प्राइस कम हो गया. I mean anything could be. So therefore I say डिमांड में 100 यूनिट की तब्दीली हुई है, 100 unit in demand. So therefore number of variables are responsible. I mean about this change. I mean maybe due to price, anything could be. कोई वजह हो सकती है. लेकिन
अब हम क्या करते हैं, इस 100 में देखते हैं प्राइस में प्राइस की कितनी तब्दीली आई है, इनकम समझ में आ रही बात। एक तो हम कहते हैं अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, एक का इम्पैक्ट देखेंगे, प्राइस देख लिया, फिर हम प्राइस को कांस्टेंट रख के फिर इनकम का इम्पैक्ट देख लिया, फिर इसको भी कांस्टेंट रख दिया, टेस्ट का इम्पैक्ट देख लिया, अब इसको भी कांस्टेंट, पकड़ा से एक एक वेरिएबल का इम्पैक्ट देख सकते हैं। बिल्कुल मैं आमतौर पर एक मिसाल देता हूँ कि मिसाल पर पूरी क्लास ये एक इकोनॉमी है, हमारी क्लास जो एक इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। वो डिस्टर्बेंस ये है कि क्लास में शोर मचा रहे हैं सब। मैंने कहा, मैं आया इंस्ट्रूमेंट लेके आया, मैंने इंस्ट्रूमेंट मेजर किया, मैंने कहा आई एज्यूम, मुझे इसकी इंटेंसिटी का नहीं पता, मैंने देखा कि फॉर एग्जांपल 10 डेसिबल जो है पूरी क्लास में साउंड की इंटेंसिटी, आई एज्यूम दिस इज व्हाट एन अजम्पशन, 10 डेसिबल, इत्तेफाक के साउंड के जो यूनिट्स होते हैं डेसिबल ही होते हैं, 10 डेसिबल है। मैंने कहा अच्छा भाई, ये जो इतनी आवाज हो रही है, ये सब इतने सारे वेरिएबल्स हैं, 50 स्टूडेंट्स नहीं है, 50 वेरिएबल, इतनी अजीम। मैंने कहा अच्छा भाई आप ऐसा करें, सब चुप हो जाए, सब चुप हो गए। मैंने कहा यू ऑल साइलेंट प्लीज, आप शोर जितने जोर से बचा रहे हैं। मैंने इन्होंने शोर बचाया, वेरिएबल 1, मैंने देखा इनकी कंट्रीब्यूशन जो थी 0.001, मैंने कहा आप शोर सबको कहो, फिर इनको भी खामोश कर दिया, इनको बोला आप चलाएं, इन्होंने शोर बचाया 0.002, ठीक है नाउ यू ऑल अदर साइलेंट प्लीज। इस तरह से एक एक 50 स्टूडेंट्स की मैंने कंट्रीब्यूशन चेक कर दी। उसमें से कुछ ऐसे भी होंगे सर नहीं मैं तो बिल्कुल खामोश, कुछ ऐसे होंगे जिसकी 0.4, कुछ ऐसे हुए ये गड़ गया ओके, इतने सारे वेरिएबल हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ही इज द मोस्ट डेंजरस। सबसे खतरनाक प्रॉब्लम ये है, इसके हिसाब से पॉलिसी बना दो, ये छोटे छोटे सब उस पॉलिसी के अंदर आ जाएंगे, एंड देन आई मेक द पॉलिसीज की जनाब अगर आपने शोर मचाया तो 5 नंबर काट देंगे, ये अलग अलग 10 तरह की क्लास में अकॉर्डिंग टू दैट। अभी से ओके अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है इकोनॉमी में, अब क्या क्या वजूहात है, इंडस्ट्रीज कम है, करप्शन है, पर कैपिटा इनकम कम है, और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारे फैक्टर्स मैंने देखे, ये सारा फैक्टर्स दैट आर रिस्पांसिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान। अब देखते हैं कि इन सारे फैक्टर में सबसे खतरनाक फैक्टर कौन है, जी कुछ है, ओह दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम, इसको कंट्रोल कर लो बाकी सब कंट्रोल हो जाएगा। So at ceteris paribus, we consider all other factors constant, and then we check the relationship between one by one in order to make a decision, in order to take proper decision, in order to get the conclusion from the given information. Are you getting me? So इससे होता है जब हम बात करते हैं ceteris paribus, I mean other thing remain constant. You know what the meaning, but the reason why we say other constant. Okay? Voluntary exchange. A voluntary exchange is, you know, when we exchange something, buyers and sellers both have background. And of course, अभी कहाँ गया होगा सर? अभी तुम बिस्किट लेकर आए थे, जूस था. Whenever we purchase something, you know, इनको फायदा क्या हुआ? ये consume that goods and it will be benefited by that goods. इसको satisfaction level मिलेगा, utility मिलेगा, मजा आएगा. सेलर को क्या फायदा हुआ? उसको प्रॉफिट हुआ, एक डब्बा बिस्किट बेचा इसको मिल गया. So therefore this is what we generally call the voluntary exchange. Whenever you see when you think the sellers and buyers both are better, आप भी better हुए by getting satisfaction and utility, और वो भी benefit मिला by enjoying the revenue, whatever the profit is after selling the business. Now, then we talk about efficient market. Efficient market. You know, efficient market is basically it's nothing but we should send the resources where they are valued most highly. Send resources to the place where they are valued most highly. Of course, we should send the resources that goods are demanded. ऐसी जगह पे रेगिस्तान में जाके फिर आप होटल खोल लीजिए, कोई भी है,
Resources should be sent there where the market is there. आम दिनों में अगर गाय खरीदना तो काफी सफर तय करके किसी एक स्पेसिफिक जगह पे जाना पड़ता है, बेचने वाले को भी वहां पे जाना पड़ता है। लेकिन अगर बकरीद का सीजन है तो हर मैदान जो है गाय मंडी बना हुआ रहता है, because they know there is a demand, they know everywhere the demand is everywhere now. It's experience, we experience that demand हर जगह मौजूद है. Therefore, we should set the resources where they are valued, where the consumers are demanding, then they could be consumed. So therefore, हमें ऐसी जगह पे कुछ, इससे क्या होता है, जो लॉस जो होते हैं ना, सोसाइटी में जो लॉस होते हैं, जो सोशल लॉस होते हैं, वो मिनिमम हो जाता है. Whenever we talk about the market is efficient, when we talk about the market में दो लोग होते हैं. Actually, one is the consumer and second one is the buyer. Oh, sorry, seller. Producer and consumer, buyers and sellers. Okay? Market और भी होता है, स्टोर होते हैं, ब्रोकर होते हैं, ब्रोकर. अब सब जनरल रिलायंस जो करते हैं मॉडल, there are two persons. One is the buyer and the other is seller. In short, buyer and seller. देखिए कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दो लोग हैं मार्केट. जब भी हम बात करते हैं एफिशिएंट मार्केट की, देखिए कंज्यूमर का मकसद होता है उसको सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम मिले. इसको कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं. कंज्यूमर का होता है कि उसका बेनिफिट या गेन या रिटर्न मैक्सिमम हो, इसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस. जब भी आप बात करते हैं मार्केट इज एफिशिएंट, इट मींस द कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस आर एट मैक्सिमम. मार्केट इज एफिशिएंट व्हेन द कंज्यूमर्स बेनिफिट एंड प्रोड्यूसर्स बेनिफिट आर मैक्सिमम. मार्केट एफिशिएंट है, कंज्यूमर का बेनिफिट, आप समझ रहे हो, कंज्यूमर का बेनिफिट मैक्सिमम है, प्रोड्यूसर का बेनिफिट मैक्सिमम है. Or whenever we say the consumer's satisfaction is maximum, producer's satisfaction is maximum, yeah, consumer's benefit is maximum, consumer's gain is maximum, consumer's utility is maximum, consumer's pleasure is maximum, so on, or the producer as well. So therefore, we can say that the market is efficient more than where कोई लॉस नहीं है मार्केट, दोनों का बेनिफिट मैक्सिमम है, नो डेड वेट लॉस. अदर वर्ड्स वी से नो डेड वेट लॉस मींस कंज्यूमर्स बेनिफिट एंड प्रोड्यूसर्स बेनिफिट. इसको हम कहते हैं मार्केट इज एफिशिएंट, नो डेड वेट लॉस. मार्केट इज एफिशिएंट, वो बोथ आर एंजॉयिंग द मार्केट, बोथ द कंज्यूमर्स एंड द प्रोड्यूसर्स बेनिफिट इज एट ऑप्टिमम लेवल. तो मतलब है, तो इसलिए हम मार्केट को एफिशिएंट कहते हैं. और यहाँ पे देखिए एक ब्रैकेट में पीस हुआ है, पर कॉन्टिनेंटल होल नहीं है ये, पठान की चाय नहीं है ये. दिस इज बेसिकली परफेक्ट मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन. ये अभी नहीं बताऊंगा, एग्जाम्पल है एक्चुअली. परफेक्ट इज अ परफेक्ट कंपटीशन इज बेसिकली अ काइंड ऑफ मार्केट. एक मार्केट की समझ ना, मार्केट की एक सिस्टम है जहां पे कंज्यूमर प्रोड्यूसर का सप्लाई जनरली मैक्सिमम होता है. तो अगर हम एफिशिएंट मार्केट की बात करते हैं, एग्जांपल्स ऑफ एफिशिएंट मार्केट इज परफेक्ट कंपटीशन. लेट यू नो व्हेन आई टीच यू द मार्केट then I let you know what is this. Okay, but you do remember the efficient market is a perfect market, is a perfectly competitive market, is a market where consumers are enjoying, the producers are enjoying, both benefits maximum, means no dead weight loss, no profit. During my lecture, you are not supposed to talk, otherwise I may toss you out from the class. You remember? Something wrong in my lecture? Of course, you are right. Something wrong? There's a problem? You may ask.
problem, this is no tolerance. Okay. Another problem that is we are really very confused about when you talk about the saving and investment. Most of the people, I mean, they know nothing about the savings. Although they are literate, but they don't know, they can't differentiate between the saving and investments. That happens frequently. I love that, and whenever I ask somebody else to therefore they fail to explain the difference between this. But another मसला है कि मैं देखा ये चीज अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों से भी वास्ता पड़ा है तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट को अमेजिंग स्लैंग लैंग्वेज बोले तो तमीज है तमीज उर्दू का लफ्ज है इंग्लिश में कहते हैं ये भी मजे की बात है जुबान जो है ना हर नबी रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज वाले खान में सबसे ज्यादा मुसीबत के जुबान की वजह से ठीक है कि रेशमी लफ्जों में कातिल से ना बातें कीजिए रेशमी लफ्जों में कातिल से ना बातें कीजिए वरना शाने लबे गुफ्तार भी गिर जाए एक और तुम्हें बताओ एक बात तुम्हें एक बात बताओ मैं एक्चुअली मेरे बहुत सारे एहतराम असातिज़ा में से एक मेरे असातिज़ा जो थे काबिल एहतराम उनका पिछले दिनों इंतकाल हो गया और बहुत बड़े मुफ्ती थे वो तबलीगी जमात में तो मैं मंगल वाले दिन मैं दर्द छोटा था ईशा के नमाज के वक्त मेरी आईटी की क्लास होती थी 9:30 बजे तक मैं डायरेक्ट हो जाता पिछले दिनों बहुत तकवा वाले थे बहुत तकवा वाले उनके दर्द में वो कह रहे थे अल्लाह पाक जो है ना आपको लगता है ना ये आदमी बिगड़ा हुआ है आपको लगता है ना कि लेकिन अल्लाह पाक को शायद वो पसंद है तो अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद करना चाहता है सुनिएगा वो चले अल्लाह पाक उसके दर्जात को बुलंद करना चाहता है अपने मतलब ये तोहफा देना चाहता है जो मैं आखिर पर तोहफा देना चाहता है तो उसको तरह तरह की परेशानियों में बीमार कर देता है कुछ इख्तिलाफ आ जाए तरह तरह की परेशानियां उसके साथ हम कहते हैं क्या मुसीबत है मुसीबत नहीं होती एक्चुअली अल्लाह पाक तुम्हारे दर्जात को बुलंद करता है अल्लाह पाक को कैंसर है अल्लाह पाक को मोहब्बत हो रही है आज दिन से अगर मुझसे कोई थोड़ी सी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि आज की महंगाई के दौर में आप जो दिल चाहता है खा लेते हैं जो दिल चाहता है कर लेते हैं जो दिल चाहता है ये अल्लाह ताला का इतना बड़ा एहसान है दुनिया के मामले में अपने से नीचे वालों को तो जब उससे कंपेयर करते हैं तो मैं कहता हूँ लाखों थाउजेंड पता नहीं कितने टाइम अच्छा हैरान हो जाता हूँ अमल तो है ही नहीं कुछ तो याद रखिए अगर आपको परेशानी आती है तो मतलब अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद कर रहा है फौरन सजदे में जाके शुक्र अदा करें फौरन सजदे में जाना शुक्र करें अल्लाह पाक का शुक्र ये और दूसरी चीज है कि लोगों को लगा के ख्याल उसी दर में कहा गया ये खातून थी बहुत तकवा वाली इतने परहेजगार इतने सदका देती थी सुनिएगा यानी कि असर फिल्म में नमाया कि खातून जहन्नमी तबाह तो यार इसकी पड़ोसी एक शख्स आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हमारे साथ मसला पता क्या होता है जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 सेकंड में नहीं लगता नाम बुरा ले आते हैं हमें भी बुरा लगता है कि हमारा नाम भी बुरा नहीं होता तो फिर ठीक है ना कहाँ में खाके दे माया कहाँ से यार तो दरजात किसी दिन नकलाल खल्क़ नदी बरकार अल्लाह का जिक्र
ठीक है ना। तो बीमार उससे पूछा नबी के वसल्लम ने कि तुम जिंदगी में कभी बीमार हुए, कभी परेशान हुए? नबी का सामना से कहा, अगर दुनिया में किसी जहन्नमी को देखना है तो और आई सी दैट, ऐसा मतलब नहीं बेरोजगारी है तो मैं रोजगार हूँ, मेरी बात समझ गए ना। बाकी मैं दिखाऊंगा, मैंने एक रिपोर्ट लिखा है जो मेरे अभी तो है उसके ऊपर, इसमें मैं आप लोगों को वेबसाइट बता दूंगा, मेरे इंटरनेशनली आर्टिकल हफ्ते में एक आर्टिकल पब्लिश होता है। तो अभी तो मैं एनर्जी के ऊपर लिखा है मैंने, पाकिस्तान में जो एनर्जी क्राइसिस, अगला जो मेरा टारगेट है अभी दो है, एक तो डिजीज, पाकिस्तान में जो डिजीज है उसके ऊपर, और अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो करप्शन हो रहा है ट्रेड का उसके ऊपर, दो है। बताओ ब्लॉगर पैसे मिलते हैं, पैसे भी निकाला। वेल, सेविंग और इन्वेस्टमेंट मैं बोलता हूँ यार देखिए, थैंक यू सर, रेफरेंस लेकर आना इसको सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग जनरली हम कहते हैं आपने मुझे सेविंग आपने में पैसा रख दिया, आपने यार मैंने बैंक में इन्वेस्ट कर दिया, like you remember when we talk about that saving is purchase of financial asset। तो जो बैंक में पैसा रखा है आपने, जो डिपॉजिट है वो आपका, वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आपकी सेविंग है। सेविंग इज परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, deposit the money into the bank, you purchase the bonds, shares, whatever, financial assets जो भी खरीद लेते हैं आप, ठीक है ना, bonds होता है, bonds खरीद लेते हैं आप, shares खरीद लेते हैं, जिससे कि is a saving। And we will talk about the investment, purchase of real assets। Real assets means you started a factory, you purchase the machinery, this is what I mean the real assets। ये real assets होता है, the assets that contribute in economic growth, the assets that contributes in national income, in the sense अगर आप real assets वो assets हैं जो आपकी national आउट बढ़ा देते हैं, efficiency को बढ़ा देते हैं, economic growth। आप फैक्ट्री खोलते हैं तो फैक्ट्री से खोलने से क्या होता है कि आप लोगों को एम्प्लॉयड भी करते हैं, लोगों को एम्प्लॉयड करते हैं, इससे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। आप लोगों को वेजेस देते हैं जिससे लोगों की इनकम बढ़ जाती है, लोगों को जब वेजेस देते हैं तो लोगों की कंजर जाती है। तो ऐसा देखिए, लोगों की कंजम्पशन बढ़ जाती है, they demand the consumer goods, consumer item, daily consuming item। When they start consuming that fast moving FMCGs खुल जाते हैं, जो FMCGs में फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो प्रोड्यूस करते हैं वो कंपनी FMCGs कहलाते हैं, वो एस्टैब्लिश हो जाते हैं, फिर उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, तो एक मल्टीप्लाई इफेक्ट होना शुरू हो जाता है इकोनॉमी। This is what the meaning of the real assets here we are talking about। Don't you think that buying shares in organization is a sort of investment? No, I'm telling you dear, you please correct yourself, please what the thing is the saving। आपने शेयर खरीदा, आपने शेयर, आपका पैसा उस कंपनी में चला गया, अब वो कंपनी उससे रियल एसेट, got it? Why and when company offers the shares, when they face shortage of funds, so therefore how they collect the money? One of the ways that they offer the share in the market so that they make money from the market, ताकि वो अपने business को extend कर सकें। God is the relation, so therefore one should be very careful to make the difference saving and investment। And correlation is that shows the relationship between the values। Correlation we have studied already in the graph the relationship
relationship, the negative relationship, the no relationship, maximum and minimum. Is it? I say x and y are the two variables. So x increases, y increases, x decreases, y decreases. I say there is a positive correlation that shows the direction. Correlation shows the direction of two variables. You see, the variable resources कहाँ चलेगा ना? So correlation. The value of values of two variables to move in a predictable and related way. That shows simply the direction. One increases, other increases, one decreases, other decreases. Relationship between the variables. One increases, other decreases, negative correlation. Positive correlation, negative correlation. And when one increases, no change in other, one decreases, no change in other, one increases, no. So therefore, null correlation, null correlation. Positive correlation, negative correlation, and so therefore sometimes these terms. Oh, there's a positive correlation between, okay, if the variables are increasing or both are increasing or both are decreasing. Okay, null, I mean unrelated variables. उसके दरमियान में कोई ताल्लुक नहीं है, impact नहीं डाल रहा है. And then we talk about the post hoc fallacy, error of reasoning. Error of reasoning. This is because of that. This is because of that. First event occurs before the second. First event occurs before the second. क्या लिखा हुआ है? The error of reasoning. The first event causes the second event. The first occurs before the second. We start shopping early. जो होने वाला है उसकी वजह से आज वाकया हुआ है. We start shopping early. सबके shopping causes. We start shopping early. Christmas. Christmas causes means shopping. So therefore, we say that this is because of that. Whatever is because of something in the future. लेकिन ये कॉस्ट ऑफ फैलेसी एक चीज और बताता है, ये एरर ऑफ रीजनिंग कहलाता है. रीजनिंग इसलिए कहते हैं, might be your perception or whatever the reasons you find out that may be the wrong. शॉपिंग इसलिए कर थोड़ी भी नहीं जाने वाला है. लोग शॉपिंग इसलिए कर रहे हैं कि वो छोड़ के भाग रहे हैं, उनके हालात से. लोग शॉपिंग इसलिए कर रहे हैं कि बस उनका इमिग्रेशन हो गया है, बड़ा हिस्सा जो है सोसाइटी का वो मूव कर रहा है. बड़ी शॉपिंग करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड करते हैं, ना जानते हैं ना. वाइट लट्ठा खरीदा जा रहा है लाखों की तादाद लीटर्स में. पता चला कि क्यों भाई बोले नहीं में वाइट कॉटन के पता चला कि बालाकोट में अर्थक्वेक आया था, 1 लाख लोग मर गए. उनकी So I mean we have to look a number of aspects. We cannot go with the single reason. We cannot stick with the single reason. यही वजह नहीं, इसके अलावा बहुत सारे वजह. एक और चीज बताता है कि this why we say the error of reasoning. This is because of that. This is because of number of reasons. So therefore ये पॉलिसी आपको बताता है कि आपको एक रीजन पे रिलाई नहीं करना. You have to see the number of reasons. और पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ की वजह से ज़राई ने थोड़ी बोला हुआ आप लाल बत्ती पे गाड़ी चला इंडिविजुअल लॉ एंड ऑर्डर, इंडिविजुअल पीपल, एजुकेशन, हम चेक करना शुरू करेंगे. वो वेरिएबल्स को पहले वेरिएबल्स को काउंट करते चले जाते हैं. ठीक है. अब मिसाल का पॉवर्टी इन पाकिस्तान हमने कहा कि नहीं एक रीजन नहीं है, दैट इज नॉट द रीजन बट इन पाकिस्तान हमने पहले बहुत सारे वेरिएबल इसका रिलेशनशिप है. we jot down all the variables that are responsible for the poverty and फिर हम देखते हैं other thing remain constant. इसका कितना impact है, other thing remain constant, इसका कितना impact आ रहा है.
पॉवर्टी कौन सा सबसे खतरनाक है, उस पर चढ़ने की कोशिश करो, उसी हिसाब से सिद्धा वाले से। Are you getting me? So we have to consider all the aspects and responsible for something, maybe the problem. Of course, we thought about the problems. The rational choices is nothing but, using resources most efficiently. And of course, allocation of resources. Resources का बेहतरीन इस्तेमाल होना चाहिए. Using available resources by most efficiently the wants of the person making the choices. When we generally rank our choices, we rank the substitutes are available in the market. Say A, B, and C are the choices, are the substitutes available in the market. I say I prefer A over B and B over C. I rank my choices. एक रैशनल तो है आपका, रैशनली तो है, आपको ए ज्यादा अच्छा लगता है बी से, मुझे सबसे खराब लगता है सी को सबसे ज्यादा प्रेफरेंसेस दे दिया. डू यू थिंक दिस इज रैशनल चॉइस? नो. मुझे सबसे खराब लगता है और सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख दिया सी को. ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता. नॉट द रैशनल. We rank our choices to our preferences. If A is preferred over B means A में B से ज़्यादा satisfaction level है. B is preferred over C, B से ज़्यादा satisfaction, जिसको हम कहते हैं revealed preferences, direct and indirect revealed preferences, to clear the preferences, to show the preferences. I say A is preferred over B, maybe really or strongly. अगर जब ये वाला सिंबल होता है तो A is strongly preferred over B. B is strongly preferred over B. मैं कहता हूँ A is preferred over B. ये जो सिंबल आ जाता है ये शो करता है कि A को प्रीफर तो करते हैं वीकली, ठीक है, चलेगा, थोड़ा बेहतर है. We generally use that term, थोड़ा बेहतर है. So therefore A is weakly preferred, or sometimes this symbol means A and B are equally like, no difference. नहीं यार, कुछ भी लिया हो चलेगा. सर क्या पिएंगे या आप 7 पिएंगे? ड्यू है 7 यार, कुछ भी लिया. You are indifferent. It happens. You are indifferent. So therefore, नहीं, I prefer ड्यू over 7 यार, ड्यू लेकर आओ. देखो ड्यू ढूंढ के लेकर आओ. यार नहीं है सर, यार बराबर वाले से बेहतर से ले लो ना. ऑफ कोर्स होता है, ऐसा होता है. आप किसी जगह पे खाना खाने जाते हैं, कभी ऐसा तो दुकान पे तंदूरी तो है, चिकन तंदूरी तो है, खाते हैं तंदूरी की रोटी, बराबर वाले होटल से लाके नहीं तंदूरी रोटी चाहिए, नहीं चपाती. यू प्रीफर तंदूर और चपाती, स्ट्रांगली प्रीफर. चलो यार, हाँ लिया ना, होता है ना. So therefore, this is what the consumer behavior is: strongly preferred, the weakly preferred, or indifferent. Whatever is, ये सारी जो preferences है, this is what the rational consumer behavior. First, we talk about जब कोई चीज खाते पीते हैं तो उससे बेनिफिट होगा, उसको मार्जिनल बेनिफिट कहते हैं. उसको उसके लिए जो पे मार्जिनल कॉस्ट होगा. मार्जिनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट, मार्जिनल बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट. अगर आपका बेनिफिट कम है कॉस्ट से तो आप वो चीज खाएंगे पिएंगे, एक्टिविटीज करोगे? नहीं करोगे. देखा आपने. अगर मार्जिनल बेनिफिट एक्सीड कॉस्ट, ऑफ कोर्स यू गो विद द एक्टिविटी बिकॉज़ द बेनिफिट एक्सीड द कॉस्ट. फायदा कॉस्ट से ज्यादा है तो फायदा कॉस्ट से कम है तो कम. दिस इज फॉर द रैशनल चॉइस. दिस इज फॉर द रैशनल डिसीजन मेकिंग वी आर टॉकिंग अबाउट. Giving us something to get something. One thing for another. इस पानी के लिए कुछ बना. This is what we call the one thing for another.
up something to get something else. Whenever talk about when they say the trade-off, I generally say that choices is a trade-off. Choices is a your choices. But just tell me one thing. When you have the choices A, B, C, ट्रेड-ऑफ का क्या मतलब है कि एक चीज के लिए दूसरी चीज को आपने कहा मैं बी के साथ जाऊंगा तो आपने ए और सी को सैक्रिफाइस किया. One thing for another, giving up something to get something, giving up something to get something else. बी को पाने के लिए और ए सी को आपने सैक्रिफाइस किया. सुबह सुबह ऑप्शन थे यूनिवर्सिटी लेक्चर और बेड टू टेक. You have the two options in the morning. नहीं तो मजबूरी. You have the choice. मजबूरी नहीं है. It is what we call scarcity of resources. मॉर्निंग में दो काम हो सकता है. क्यों? रिसोर्सेज लिमिटेड है. या यूनिवर्सिटी आ जाए, सोने को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. सोते रहे तो यूनिवर्सिटी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. This is what I'm telling you. सोते सोते यूनिवर्सिटी आ जाओ. तुम कुछ भी कर सकते हो. You are true पाकिस्तान. तो ये वही है. घर में बैठा होता ऑफिस में इसके प्रेजेंट लगता है. गवर्नमेंट नहीं होता है गवर्नमेंट. So therefore, giving up something to get something else. एक चीज को पाने के लिए आपको दूसरी चीज को पाना. There is a shortage of time in the morning. In the morning, there is a shortage of time. दोनों काम एक साथ. Scarcity of resources. Your most important resource is your time. I told you, economic problem arises when you have the scarcity of resources. Is it? The class begins at afternoon, and we have plenty of time to sleep. It is also the start. I'm talking about at the same time. And of course, when talk about the evening, so therefore we talk about that either you study or you do the. If your university time is 2 or 3 and the office timing is 9, no end time, आने का है जाने का नहीं. This is what our culture. I'm not talking about the few government organizations. Government organization में सारे requirements पूरी separate किया हुआ है. Public sector. So therefore job करेंगे मुश्किल हो जाएगा education का. तो हमारे पास वो है कि alternative तरफ चले जाते हो. अपन कहता है ना जो कहते हैं जना वीकेंड प्रोग्राम. So well, लेकिन we talk about at the same time not possible for you. समझे? तो इसको कहते हैं हम the trade off, one thing for another. One thing for trade off ही तो है. अब मिसाल के तौर पर समोसा है, चिकन रोल है, दोनों खाने का दिल कर रहा है. प्रॉब्लम क्या है? ये 20 रुपए का है और 10 रुपए का है. जेब में 20 रुपए है, दिल दोनों कर रहा खाने. अगर ये खाओगे तो इसको सेट करोगे, अगर ये खाओगे तो इसको सेक्रीफाइस करोगे. क्यों कर रहे हैं? दोनों खा ले नहीं खा सकते, पैसा नहीं है. Got it? At this time you just find rupees in your pocket, so therefore you have to choose one and you have to sacrifice one. You can look something to get something. मिसाल के तौर पर मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड है, एक घर है, मेरे पास तो यूज इट फॉर योर ओन पर्पस और रेंट इट टू समवन एल्स. खुद इस्तेमाल कर रहे हैं या किराए पे ले रहे हैं. खुद इस्तेमाल तो किराया नहीं मिलेगा. बच्चों वाली बातें क्यों कर रहे हो? जेब में भर लूंगा, जेब भी भर गया थैली में भर लूंगा. वही बच्चा वही है. Whatever you have. तो आप बोलेंगे सर 20 रुपया है चोरी का. ये कोई बात नहीं है. 20 रुपया है, जाऊंगा किसी से जेब काट लूंगा, फिर खा लूंगा. ये क्या बात है? 20 रुपया है, जाऊंगा अपनी से मांग के आऊंगा. I'm talking about what
So generally talking about, sir. What मैंने झूठा सुना करो what you have at that particular time और तुम घर को डबल में बना रहे हो ऐसा लगता है कि कागज का घर बना रहे हो कागज का घर बनाने में ऐसा लगता है रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि चॉइसेस जो होता है जब स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होते हैं यू हैव फिक्स्ड रिसोर्सेज उस पर होते हैं ट्रेड ऑफ घर भाई करोड़ों रुपए लगते हैं घर बनाने में जिंदगी लग जाती है घर बनाने में तुमने बोल दिया बन गया फिर वो रुपया और ओह माय गॉड यार समझाओ ना यार मैं तो कर यार मुझे कर यार अब समझिए बना दूंगा ये कर दूंगा भाई अच्छा सरकारी थोड़ी हो गॉड यार इसका सवाल बोले इसके बाद इतने पैसे हैं कि लोगों ने काउंटर खरीद लिया लेकिन वो पैसा कहीं और से बचा के आपने खरीद लिया किसी चीज को सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं आप बेहतरीन मिसाल आज के दौर में जैसे बेचारे गरीब या जीरो एवरेज इनकम वाले जो अपनी बेटियों की शादी कर